Hello students. So in this class we are going to take forward our discussion on mathematical induction, and we are going to look upon some of the more problems and how to solve those problems with the use of principle of mathematical induction. So here you can see a problem. States that you need to prove that for all n belongs to small n belongs to capital N, that is capital N is set of natural numbers. So 1 plus 3 plus 3 square up to 3 raised to n minus 1 is equal to 3 raised to n minus 1 divided by 2. Okay, so we need to prove this. Fine. Now let's look into the solution to this problem. You see, we can say that there is a statement Pn such that 1 plus 3 plus 3 square plus up to what? 3 raised to n minus 1 is equal to 3 raised to n minus 1 divided by 2. Okay, this is your Pn. Okay, now first step says that for n is equal to 1, what is your LHS? LHS वैल्यू क्या हो जाती है? 3 रेज टू n की वैल्यू 1 ले लो माइनस 1 इट इज इक्वल टू 3 रेज टू 0 इक्वल टू 1 एंड RHS let's calculate it. So 3 raised to 1 minus 1 divided by 2. So 3 minus 1 2 by 2 क्या हो जाता है 1. So LHS is equal to RHS, hence P of 1 is true. Therefore P of 1 is true. Now what we need to assume is, in your second step, assume that pk is true. Assume that pk means that value of n is equal to k, है ना? So when p of k is true, in that case your value of n, k at n is value of n equal to k will be written, can be written as 1 plus 3 plus 3 square plus up to what? 3 raised to k minus 1, and it will be equal to what? 3 raised to k minus 1 divided by 2. Okay, now it states that this particular equation 1 is true. Now what we need to prove is, so we need to prove that pk plus 1 is true, p plus 1 is true when p of k is true. Okay, so now what we need to prove actually, so given n is equal to k plus 1, 1 plus 3 plus 3 square plus up to what? 3 raised to k plus 1 minus 1 will be equal to what? 3 raised to k minus plus 1 minus 1 by 2. ये जो सेकेंड है ये हमको क्या करना है? प्रूफ करना है. ठीक है. Now to prove it, let's take first the LHS. Okay, so LHS क्या कहता है? LHS is equal to what? 1 plus 3 plus 3 square plus up to what? 3 raised to k minus 1 plus 3 raised to k plus 1 minus 1. Okay, sorry. 3 raised to k minus 1. ठीक है, ये कहाँ पे? Using equation 1. So what you get is 3 raised to k minus 1 by 2. इससे ये मिल रहा है using equation 1, है ना? Now you can do one thing. देखो मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपको क्या करना है कि कैसे 3 raised to k plus 1 minus 1 लाना है. ठीक है, so just add 3 raised to k on both sides. You can add it on both sides. So what will you get? So LH, so it will be equal to, it will be equal to 1 plus 3 plus t square plus what? 3 raised to k minus 1 plus 3k equal to 3 raised to k minus 1 by 2 plus what? Right? Now if you just try to solve it, what will you get? So 3 raised to k minus 1 plus into 3k divided by 2. Okay, now you can solve it further. अब यहाँ पे क्या है, आप
क्या कर सकते हो, 3 को कॉमन ले सकते हो ना, तो क्या आ जाएगा 1 + 2 -1/2। आंसर क्या आ जाएगा 3 × 3k -1/2। और क्या लिख सकते हैं 3 × k + 1 -1/2। ओके, सो इट इज इक्वल टू व्हाट RHS। क्योंकि हमें देखो यहाँ पे सेकंड इक्वेशन में क्या 3 × k + 1 -1/2 यही प्रूफ करना था। आ गया हमारा आंसर करेक्ट। सो हेंस योर Pn is true for n that belongs to set of natural numbers. Okay. Similarly, let's look into another problem. Problem number 2. It states that you need to prove that 1 cube plus 2 cube plus 3 cube up to what n cube is equal to what n into n plus 1 divided by 2 the whole cube, sorry whole square। और अगर आपने जो है सीरीज का सम देखा है ना, क्यूबिक सीरीज का सम, तो आंसर यही आता है n इंटू एन प्लस 1/2 द होल स्क्वायर, है ना। तो इसको क्या करना है, आपको प्रूफ करना है। सिमिलरली हम लोग ले लेते हैं प्रूफ करने के लिए क्या एक स्टेटमेंट ले लेते हैं, है ना। व्हाट इज दैट स्टेटमेंट p ऑफ n, व्हाट इट स्टेट्स कि 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, it will go up to n cube and it will be equal to how much n into n plus 1 divided by 2 the whole square। ये हमारा स्टेटमेंट Pn है। ओके, तो हम पहले क्या करते हैं, फॉर n इक्वल टू 1 की चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं कि भाई आपकी LHS क्या आ रही है। LHS तो 1 का क्यूब क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, करेक्ट। और RHS की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा भाई 1 पुट कर दो तो 1 इंटू 1 प्लस 1 2 डिवाइडेड बाई 2 द होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना आ जाता है आपका 2 का स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर इक्वल टू 1, है ना। सो LHS इक्वल टू RHS, हेंस P1 इज ट्रू, है ना। अब हम लोग को क्या एज्यूम करना है, एज्यूम करना है कि PK इज ट्रू। व्हेन PK इज ट्रू योर PK becomes 1 cube plus 2 cube plus 3 cube plus it goes up to what K cube equal to K into K plus 1 divided by 2 the whole square। मान लेते हैं कि दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब देखो सोचना है, ठीक है, कभी भी सोचो कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। ठीक है, तो अब आपको क्या है, क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ व्हाट दैट pk plus 1 is true when pk is true। प्रूफ करने के लिए क्या है भाई, pk plus 1 को ले लो, pk plus 1 क्या हो जाएगा आपका, है ना। आपको प्रूफ क्या करना है कि 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब ऐसे लिख लो, है ना। ये क्या हो जाएगा k क्यूब प्लस a प्लस 1 क्यूब, है ना, इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका k प्लस 1 k प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर। आपको क्या करना है, यही प्रूफ करना है, इक्वेशन नंबर 2 को प्रूफ करना होगा आपको। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 2 को प्रूफ करने के लिए आप क्या करो, LHS ले लो। LHS अगर आप लेते हो तो आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे भाई, ये जो k क्यूब तक आपने जो लिखा है, ये k क्यूब तो आपको इक्वेशन नंबर 1 से मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा k क्यूब की वैल्यू, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो k प्लस 1 बाई 2 द होल स्क्वायर। ठीक है ना, और प्लस आपको क्या है k प्लस 1 का क्यूब गिवन। फर्दर सॉल्व करते हैं LHS को, तो क्या हो जाएगा k स्क्वायर इंटू k प्लस 1 द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 प्लस k प्लस 1 द होल क्यूब। एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो क्या निकलेगा आपका, तो k स्क्वायर k प्लस 1 द होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू k प्लस 1 द होल क्यूब डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। इसको और सॉल्व करते हैं तो क्या निकलेगा भाई, ये दोनों में से k प्लस 1 का स्क्वायर कॉमन निकल सकता है, तो मैं क्या करता हूँ k प्लस 1 का स्क्वायर को कॉमन निकाल दिया। अब क्या बचा अंदर k स्क्वायर प्लस 4 इंटू k प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4।
ठीक है। अब इसको और सॉल्व करता हूँ तो आंसर क्या आएगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, और इसको मैं लिख सकता हूँ के प्लस वन का होल स्क्वायर। और क्या लिख सकता हूँ, के स्क्वायर प्लस फोर के प्लस फोर डिवाइडेड बाई फोर। देखो यहाँ पे सॉल्व करूंगा ना, फोर के प्लस फोर हो जाएगा, ये ब्रैकेट सॉल्व होगा तो। अब देखो अगर हम लोग ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या निकलता है, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब ए को मान लो के, और बी को मान लो क्या, बी को मान लो टू, है ना। के प्लस टू का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, के स्क्वायर प्लस टू इंटू टू इंटू के, फोर के प्लस टू का स्क्वायर फोर हो जाएगा। ये यहीं पे आ गया ना ये वाला। तो इसको क्या लिख सकते हैं, के प्लस वन का होल स्क्वायर, के प्लस टू का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई फोर। और क्या लिख सकते हैं इसको, के प्लस वन के प्लस टू बाई टू का होल स्क्वायर। ये क्या है आपका इक्वेशन नंबर टू का आरएचएस है ना ये। देखो के प्लस वन के प्लस टू बाई टू द होल स्क्वायर आपको निकालना था, निकल गया आपका आरएचएस। सो इट इज प्रूव्ड that P of n is true for small n that belongs to set of natural numbers capital N. Correct? Now, similarly, I have one another question. That question says that you need to prove the series. What is that series? 1 plus 1 by 1 plus 2 plus 1 by 1 plus 2 plus 3 plus ये कहाँ तक जा रहा है, 1 by 1 plus 2 plus 3 plus up to n को अगर हम इक्वेट करते हैं तो आंसर क्या आता है, 2n बाई n प्लस वन। करेक्ट। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसको समझो। तो बहुत सिंपल है, इसमें भी अगेन इसका हम सॉल्यूशन निकालते हैं। ठीक है। इसका अगर हम सॉल्यूशन करेंगे तो कैसे करेंगे आप समझो। भाई पहले तो P1 पे चेक कर लो आप। ठीक है। तो P1 पे अगर आप चेक करते हो तो LHS की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। और RHS की वैल्यू क्या होगी, 2 इंटू वन डिवाइडेड बाई वन प्लस वन। तो आंसर क्या आएगा, 2/2 इक्वल टू वन। तो P1 तो ट्रू हो गया। अगर वही चीज अगर हम पीके पे चेक करते हैं इसको तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा वन प्लस वन बाई वन प्लस टू प्लस वन बाई वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस अब ये कहाँ तक जाएगा, वन बाई वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस अप टू के। करेक्ट। सो इट विल बी इक्वल टू व्हाट, 2k डिवाइडेड बाई k प्लस वन। ये मान लो कि हमारा जो है ट्रू है, क्योंकि हम पीके को क्या करते हैं, ट्रू, है ना। अब अगर हमारे पास ये ट्रू है और हमें प्रूफ करना है पीके प्लस वन, सो पीके प्लस वन आपका क्या हो जाएगा, पीके प्लस वन, लेट मी री राइट इट। ठीक है। सो पीके प्लस वन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू आपका वन प्लस वन बाई वन प्लस टू। करेक्ट। प्लस वन बाई वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस ये कहाँ तक जाएगा, वन बाई वन प्लस टू प्लस अप टू के प्लस वन, है ना। तो इट इज इक्वल टू क्या, आपको क्या प्रूफ करना है, टू इंटू के प्लस वन डिवाइडेड बाई के प्लस टू, है ना। तो अब आपको क्या पता है कि भाई के प्लस वन के पहले क्या आता है, के आता है। तो यू कैन राइट इट एज, जो हमारे पास इक्वेशन नंबर वन है उससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं कि भाई टू के बाई के प्लस वन, ये तो हम लोग ले ही लेंगे। ठीक है। सिमिलरली अगर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं वन बाई, अगर ये देखो ये क्या है, वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस के प्लस वन, ये कौन सा वाला सीरीज है, वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस अप टू एन। तो इसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू। यहाँ पे एन की वैल्यू क्या है, के प्लस वन। तो एन प्लस वन की वैल्यू क्या हो जाएगी, के प्लस टू। तो इसको क्या लिख सकते हो, के प्लस वन के प्लस टू डिवाइडेड बाई टू। इसको और क्या लिख सकते हो, टू के बाई के प्लस वन प्लस ये टू को ऊपर ले जाओ, टू बाई के प्लस वन के प्लस टू, है ना।
अब यहाँ से क्या कर सकते हो आप, 2/k+1 को कॉमन ले लो, तो क्या आ जाएगा 2/k+1, तो ये आपका हो जाएगा k+1/k+1 k+2, फाइन। सॉरी, k+1 तो हमने कॉमन ले लिया है, ठीक है, तो ये k+1 आएगा नहीं, करेक्ट। तो हम लोग फिर आगे इसको और अगर सॉल्व करना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, एलसीएम ले लो, तो 2/k+1, ठीक है, और इसका अगर एलसीएम लोगे k, तो k+2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं इसको, k इंटू k+2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई k+2, और इसको क्या लिख सकते हैं, देखो 2/k+1, इसको और सॉल्व करो, k² प्लस 2k+1 डिवाइडेड बाई k+2, करेक्ट। अब इसको क्या लिख सकते हैं, देखो अगर हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a² प्लस 2ab प्लस b², इसमें a की वैल्यू को अगर हम k करें और b की वैल्यू को 1 करें, तो आंसर क्या आ जाएगा, k² प्लस 2k+1, है ना। तो ये कौन सा है, ये न्यूमरेटर है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 2/k+1, ऊपर में क्या आ जाएगा, k+1 द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई k+2, ये k+1 कैंसिल हो गया, तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू k+1 डिवाइडेड बाई k+2, करेक्ट। तो आपका ये जो है इट इज इक्वल टू RHS आ रहा है, किसका RHS आ रहा है, आपका ये जो आपका सेकंड इक्वेशन है उसका RHS आ रहा है 2 इंटू k+1/k+2, यही तो आपको प्रूफ करना था, है ना। सो hence prove that P of n, statement P of n is true for small n that belongs to set of natural numbers capital N, ठीक है। हम लोग अगले क्लास में और कुछ प्रॉब्लम्स को देखेंगे मैथमेटिकल इंडक्शन के। सो टिल देन थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी।